Today we are discussing about the chapter of class 12 evolution. Now let's start. First is कि origin of life हमारे यूनिवर्स में origin of life का origin मतलब आविष्कार कैसे हुआ, ओरिजिनेट कैसे हुआ लाइफ और इसको किसने दिया था, किसने स्टेट दिया था इसको, ये सब हम जानेंगे। और कितनी पुरानी यूनिवर्स है ये भी हम पता जानेंगे इसमें। तो फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। स्टेलर्स डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड। जो यूनिवर्स है वो बहुत ओल्ड है, ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड इट इज़ द यूनिवर्स। बिग बैंग theory states that to explain to use of the origin of the universe, बिग बैंग theory से ही एक्सप्लेन हुआ था origin of earth का। द बिग बैंग theory it states that the universe was in a very high density state and then expanded. A singular huge explosion, unimaginable in physical terms. The universe expanded and hence the temperature came down. Hydrogen and helium formed sometimes later. The gases condensed under gravitation and formed the galaxies of the present day universe. In the solar system of the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years ago. इन द सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी जो अर्थ है वो सपोज हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। जो अर्ली अर्थ की कंडीशंस हैं वो इस तरह हैं। देयर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन अर्ली अर्थ। वाटर वेपर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास कवर्ड द surface. The UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen, and lighter H2 escaped. Oxygen combined with ammonia and methane to form water, CO2, and others. The ozone layer was formed as it cooled. The water vapor fell as rain to fill all the depression and form oceans. Life appeared 500 million years after the formation of Earth. हमारी जो लाइफ है वो अपीयर हुई तब जब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. नाउ हाउ लाइफ ओरिजिनेट इट इज़ a question इसमें how life is originate. Several attempts have been made from time to time explain the origin of life on earth. As a result, there was several theories which offered their own perspectives on the possible mechanism of origin of life. Some of them are following. First, theory of panspermia. Second, theory of spontaneous generation. Third, theory of chemical origin. And the fourth, theory of biogenesis. Early Greek thinkers thought units of life called spores were transferred to different planets including Earth. Theory of panspermia. Cosmozoic theory है ये. This theory was proposed by Richter. ये जो थियोरी है थियोरी ऑफ पैनस्पर्मिया, इस थियोरी को प्रपोज किया था रिचर्ड ने 1865 में. अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी on earth came from a distant planet in the form of spores or microorganism. Then theory of spontaneous generation. According to this theory, life came out of decaying and rotting matter like straw, mud, etc. Theory of spontaneous generation was proposed by von Helmont. Louis Pasteur experiment. Careful experimentation demonstrated that life comes only from pre-existing life. He showed that in pre-sterilized flasks, life did not come from key list, while in other flasks open to air new living organism arose from key list. This disproved the theory of spontaneous generation. Now the theory of chemical origin. Oparin Haldane theory of origin of life. Oparin Haldane theory of origin of life. Oparin of Russia and Haldane
of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule, that is RNA, protein, etc. Formation of life was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecule from inorganic constituents. देन नाउ यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट इसका जो कंडीशन है अर्थ के लिए वो है हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4NH2 वाटर एंड हाइड्रोजन एक्सेट्रा. Urey and Miller experiment set up the experiment involved special flask was made up of two glass flasks connected in a loop to in which one flask was half filled with water and the other with a pair of electrodes. Gases like NH3CH4S2 taken in the flask. Electrodes made up of tungsten which can cause high frequency spark. Boiling water condenser. In 1953, S. L. Miller created conditions similar to primitive Earth in a laboratory scale. 1953 में एस एल मिलर ने क्रिएट किया था कंडीशन सिमिलर टू प्रिमिटिव अर्थ इन अ लेबोरेटरी स्केल. इसमें एक डायग्राम भी है जिस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि वैक्यूम से आपका इलेक्ट्रो जो फ्लास्क है उसमें स्पार्क डिस्चार्ज कैसे हो रहे हैं इलेक्ट्रोड्स में, और वाटर आउट कैसे हो रहा है, इन कैसे हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ बन रहे हैं, लिक्विड वाटर ट्रैप कहाँ हो रहा है, बॉइलिंग वाटर कहाँ हो रहा है, वैक्यूम से पंप कहाँ हो रहा है, इसमें कौन कौन से गैसेस पाए जाते हैं, CH4 NH3 H2O H2, ये सारे गैसेस इसमें पाए जाते हैं. आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है. मैं आपको आई थिंक आपको क्लियरली वे में नज़र आ रहा होगा. ये एक्सपेरिमेंट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनसीईआरटी. इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसमें सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कहाँ से इलेक्ट्रोड्स जनरेट हो रहा है, कहाँ से स्पार्क डिस्चार्ज हो रहे हैं, कौन कौन से गैसेस हैं इसमें और क्या क्या है इसमें सब दिख रहा है. ये मिलर्स एक्सपेरिमेंट का डायग्रामेटिक व्यू है. एनसीईआरटी में गिवन है आपको क्लियरली वे में आई थिंक दिख रहा होगा. अगर नहीं दिख रहा तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं. सारे पॉइंट्स इसमें हैं. एस एल मिलर के कुछ एक्सपेरिमेंट से कुछ प्रोटोकॉल थे. प्रोटोकॉल ऑफ द एक्सपेरिमेंट वो ये था: इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क हैविंग CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस. Energy released due to spark powers reaction between the molecules as in the Earth's early atmosphere. After some time, hot gases in spark chamber are cooled due to this water vapor condenses with the help of condenser and soluble molecules are dissolved. Then the presence of organic molecule, that is amino acid, was absorbed after few days. The water vapor added to artificial atmosphere by boiling water present in experiment setup. In similar experiments, other observed formation of sugars, nitrogen bases, pigments and fats. Analysis of meteorite contain also revealed similar compounds, indicating that similar processes are occurring elsewhere in space. Now the last theory is theory of biogenesis. According to this theory, life originates from pre-existing life. जो थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस है इसके अकॉर्डिंग जो लाइफ ओरिजिनेट हुई वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के थ्रू हुई. दिस थियोरी वाज प्रूव 3 साइंटिस्ट. इस थियोरी को 3 साइंटिस्ट ने दिया था. फर्स्ट जो थे वो थे रेडी, सेकेंड थे स्पेल्जानी एंड थर्ड जो थे वो थे पास्चर. द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेट 3 बिलियन ईयर्स बैक. They would have been giant molecules, RNA, protein, polysaccharide, etc. The first cellular forms of life were probably unicellular. इसमें जो ईयर्स गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंस हैं. जैसे अभी मैंने फर्स्ट ईयर्स आपको लर्न करवाए थे जो द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द सेकेंड इज life appeared 500 million years after the formation of Earth. And third is the solar system of the Milky Way galaxy. Earth was supposed to have been formed about 4.5 million years back. And now the first non-cellular forms of life could have originated 3 billion years back.
तो जो सारे ईयर्स गिवन है इसको टोटली लर्न होना चाहिए, बिकॉज इसी से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, MCQs, कुछ भी बना के वो दे सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। नाउ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ इन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स में ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो फर्स्ट जो है वो सिंथेसिस ऑफ मोनोमर्स, देन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायन्ट्स, देन फॉर्मेशन ऑफ DNA, एंड देन बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। Now, our next topic is what are the evidences for evolution? Evolution is a stochastic process based on chance, events in nature and chance formation mutation in the organism. इसमें एक होता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो होता है वो स्टडी शो दैट लाइफ फॉर्म्स वेरीड over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. Hence, new leaves have arisen at different times in the history of Earth. इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट इज फॉसिल्स, remains of hard part of life found in rocks. A study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed. Second point is rocks. Rocks form sedimented and a cross section of earth crust indicates the arrangement of sediments on one over the other during the land history of earth. एवोल्यूशन के एविडेंसेस का सेकेंड बी पॉइंट जो है वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। इसमें होते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शोज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर्स अगो। इसमें दो होते हैं, एक होता है होमोलॉगस, एक होता है एनालॉगस ऑर्गन। जो होमोलॉगस ऑर्गन होता है वो हैव फंडामेंटल सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, इट इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। और जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं वो हैव सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। एनालॉग की जो फंक्शन सिमिलर होते हैं लेकिन जो इसके ओरिजिन होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में होते हैं। होमोलॉगस के ऑर्गन के एग्जांपल हो गए आपके थॉर्न्स, बॉगनविलिया, टेंड्रिल्स ऑफ कोकरबिता, ह्यूमन हैंड एंड वेल्स फ्लैपर्स, बैट्स विंग्स, चीता फूट, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप। एनालॉगस ऑर्गन वो के एग्जांपल नहीं है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, आइज ऑफ ऑक्टोपस, पेंगुइन्स, डॉल्फिन्स, sweet potato, trachea of insect, and lungs of vertebrates. One example is similar in homologous organ and analogous organ. That is sweet potato. Both the example are similar. Then now convergent and divergent evolution. Convergent और divergent evolution में differences क्या होते हैं? जो convergent evolution होता है वो it is the process by which unrelated species become more similar in order to survive and adopt in similar environmental condition. और जो divergent evolution होता है it is the process by which related species become less similar in order to survive and adopt in different environmental condition. Convergent evolution में हो गया origin of analogous organ is due to convergent evolution. Divergent evolution, the origin of homologous organ is due to divergent evolution. ठीक, now see मतलब थर्ड पॉइंट, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन का थर्ड पॉइंट जो है वो है एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ मोथ पॉपुलेशन इन इंग्लैंड मेड इन 1855. That is example of industrial malaise. Industrial malaise in England before industrialization 1850s. There were more white-winged moths, Western Betloria, on trees than dark-winged or manalist moths, Western Carbonaria. Reason: there was white-colored lichen covered the trees. In that background, the white-winged moths survived, but that dark-colored moths were picked out by predators. ये जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है ये वाइट विंग के मोथ की तरह होते हैं, मतलब ये आपको जापान में दिख जाएगा। जापान में जो पेड़ होते हैं उस पर वाइट वाइट डार्क वो कलर लाइकेन लगे होते हैं ट्रीज़ में,
जिसके वाइट विंग मोथ सर्वाइव बट द डार्क कलर मोथ्स वेयर, जहाँ पे वाइट मोथ होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो डार्क कलर्ड मोथ होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो पिक्ड आउट बाय प्रेडेटर्स. Then after industrialization 1920, more dark winged and less white winged moth. 19 आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वहाँ पे ज़्यादा डार्क विंग मोथ दिखने लगे और बहुत कम वाइट विंग दिखने लगे, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले वहाँ पे मतलब लाइकेन जो थे वो कवर्ड थे पूरे ट्रीज़ में, जिसकी वजह से वाइट मोथ तो रह पा रहे थे लेकिन डार्क कलर्ड मोथ नहीं रह पा रहे थे. बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में डार्क मोथ ज़्यादा थे और वाइट मोथ जो थे वो बहुत लेस थे. Now, what is adaptive radiation? The process of evolution of different species in a given geographical area, starting from a point and literally radiating to the other areas of geography habitats, is called adaptive radiation. Adaptive radiation, where more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, representing different habitats. One can call this convergent evolution. इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज डार्विन फिंचेस. जो एडाप्टिव रेडिएशन होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं. फर्स्ट है डार्विन फिंचेस. डार्विन फिंचेस जो तो डार्विन थे, डार्विन एक दिन गए गैलापागोस आइलैंड में. गैलापागोस आइलैंड में जब वो गए तो वहाँ पे उन्हें कुछ बर्ड्स दिखे, बहुत स्मॉल ब्लैक बर्ड्स दिखे जो बाद में डार्विन फिंचेस के नाम से फेमस हुए. वहाँ पे वो गए तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रहे थे, वो देखने के लिए बहुत उनको अच्छा लग रहा था. वहाँ पे गए तो उनको तरह तरह के बर्ड्स दिख रहे थे. स्मॉल बर्ड्स थे, किसी के बीक्स मोटे थे, किसी के बीक्स थिक थे, किसी के बहुत छोटे थे. बहुत 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 कुछ देखने को उनको वहाँ मिला. तो मतलब जब वहाँ पे गए तो उन्हें ऑल दी वेराइटीज़ इवॉल्व ऑन द आईलैंड इटसेल्फ. From the origin seed-eating feature, many other forms with altered beaks arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches. जो कुछ इंसेक्टिवोरस थे, कुछ वेजिटेरियन फिंचेस थे. मतलब कुछ जो थे वो कीट पतंगे मतलब बैक्टीरिया मतलब जो होते हैं वो सब खाते थे. कुछ स्मॉल बर्ड्स जो थे, कुछ स्मॉल बर्ड्स जो सिर्फ टोटल वेजिटेरियंस थे. कुछ के बीक्स इतने मोटे थे कि वो कुछ भी खा सकते थे, बट कुछ के बीक्स इतने पतले थे, इतने थिन थे कि वो खा नहीं पाते थे और मतलब कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे. उसी के बेसिस पे डार्विन फिंचेस थियरी दिया गया था, जो डार्विन ने दिया था जब वो गैलापागोस आइलैंड में गए थे वहाँ पे जाके. Then the second point is Australian marsupial. A number of marsupial is different from the other evolved from an ancestral stock, but all within the Australian island continent. ऑस्ट्रेलियन मार्supials के एग्जाम्पल्स ये भी होता है. एक होता है प्लेसेंटल मैमल. प्लेसेंटल मैमल जो होता है मतलब जैसे कि कंगारू. कंगारू जो होते हैं जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने प्लेसेंटा मतलब अपने अपने पास ही रखे रहते हैं. जहाँ पे उनका स्टमक होता है वहीं पे वो रखे रहते हैं जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं. वो अपने से दूर नहीं करते हैं अपने बच्चों को. जैसे प्लेसेंटल मैमल था जो ऑस्ट्रेलिया में सीन हुआ था. ये प्लेसेंटल मैमल ऑल्सो exhibit adaptive radiation and evolving into varieties of such placental mammals, each of which appears to be similar to a corresponding marsupials, that is placental wolf, टास्मानियन वॉल्फ मार्supial. इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो आपके बुक में गिवन है. जैसे कि ये गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. प्लेसेंटल मैमल और मार्supial मैमल्स के बीच में डिफरेंस देखिए ये दे रखा है. ये सारे हैं जैसे कि मोल है, मोल प्लेसेंटल मैमल है और इसका ऑस्ट्रेलियन मैमल मार्supial मोल हो गया. एंटीटर नंबत एंटीटर. फिर माउस भी मार्supial माउस. लेमर स्पॉटेड कस्कस. फ्लाइंग स्क्वायरल फ्लाइंग फैलेंजर. बॉब कैट टास्मानियन टाइगर कैट. वॉल्फ टास्मानियन वॉल्फ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. इसमें क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि प्लेसेंटल मैमल्स किसे कहते हैं और ऑस्ट्रेलियन मैमल्स किसे कहते हैं. पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा कर देखेंगे तो उसमें बहुत से क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे आपको. नाउ द टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन. पहले उन्होंने डार्विन फिंचेस दिया, अब इसमें डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन भी उन्होंने दिया था, जिसमें द एसेंस ऑफ डार्विनियन थियरी अबाउट एवोल्यूशन इज़ नेचुरल सेलेक्शन. नेचुरल सेलेक्शन का डार्विन थियरी है ये. द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन. ये जो रिलेटेड है लिंक है लाइफ साइकिल से और लाइफ स्पैन से. Microbes that divide fast have the ability to multiply and becomes million of individual within hours. A colony of bacteria
से मान लीजिए ए है, ग्रोविंग ऑन अ गिवन मीडियम हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड component, then a change in the medium composition would bring out only that part of population, say बी मतलब एक कॉलोनी ए है एक कॉलोनी बी है, that can survive under the condition. In due course of time, this variant population outgrows the other and appears as new species. This would happen within days. For the something to happen in a fish or fowl would take millions of years, as lifespan of these animals are in years. Here we say that fitness of B, colony B, is better than that of colony A. Under the new condition, nature selects for fitness. One must remember that the so called fitness is based on characteristics which are inherited. One point is most important: branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwin theory of evolution. Darwinian theory of evolution. कौन से? Branching descent and natural selection. Two key concepts. Darwinian theory of evolution. Now, Lamarck theory of evolution. It is called as theory of inheritance of acquired characters as acquired structural and functional changes during lifetime of an individual can pass on to its offspring. It states that evolution of life form occurred by use and disuse of organs. Evolution by use of organ. Long neck of giraffe is due to continuous elongation to forest leaves on tall trees. This acquired character was inherited to succeeded generation. एवोल्यूशन ऑफ बाई यूज़ ऑफ ऑर्गन्स मतलब जब जिराफ के जो गले थे वो मतलब जो उनके नेक थे वो ऐसे ही लंबे नहीं थे। वो पहले टाइम पे जब उनको बहुत बहुत ज़्यादा जब घास उनको नहीं मिले तो फिर उन्होंने ऊपर की पेड़ की पत्तियाँ तोड़ तोड़ के खाने की कोशिश की। जैसे कि मान लीजिए अगर मतलब किसी बच्चे की हाइट बहुत बढ़ानी होती है तो उसे एक्सरसाइज कराया जाता है, ऊपर हाथ करके एक्सरसाइज करो, उसको बहुत सारे एक्सरसाइज कराए जाते हैं। बहुत से वैसे ही जिराफ भी थे जिराफ भी थे वैसे ही जब उनको ग्रासेस ख़त्म होने लगी, उनको ग्रास नहीं मिल रहे थे खाने को, तब उन्होंने भी पेड़ की पत्तियों को खाने से शुरू किया जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे टहनियों पे होते थे, पाना बहुत मुश्किल होता था। तो वो अपने उसी से उनका जो नेक है वो ग्रो करते गया और इसी वजह से उनकी नेक इतनी लंबी और इतनी लंबी हो गई और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो सब में आने लग गया। जिराफ पहले से लंबे नहीं थे, इनके नेक पहले से लंबे नहीं थे, इसकी वजह से उनके नेक से वो लंबे हो गए और वो फिर आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन सब में आने लग गए थे। देन एवोल्यूशन ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, disappearance of limbs in snake. This theory was eliminated out because it is proved that the characters are inherited only through genes. Now, the next topic is mechanism of evolution. इस एवोल्यूशन को दो साइंटिस्ट ने दिया था, मतलब एक साइंटिस्ट ने दिया था, ह्यूगो दे वेरीज ने इस प्रपोज किया था म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ही कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट ऑन ऑनथेरा लेमार्कियाना एवेनिक प्राइमोरोस and believed that evolution takes place through mutation, large difference arising suddenly in population and not by minor variation. डार्विनियन वेरिएशन और ह्यूगो दे वेरीज म्यूटेशन में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे डार्विन एवोल्यूशन में जो था वो माइनर वेरिएशन था, बट जो डेवरीज म्यूटेशन था उसमें लार्ज वेरिएशन थे। डार्विनियन एवोल्यूशन स्लो एंड डायरेक्शनल था, बट जो डेवरीज म्यूटेशन था वो रैंडम था, सडन एंड डायरेक्शन लेस था। डार्विनियन एवोल्यूशन ग्रेजुअल एवोल्यूशन था और दी वेरीज म्यूटेशन स्पेशिएशन बाय साल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। In a given population, one can find out Hardy-Weinberg principle, stating that the frequency of occurrence of alleles of a gene on a locus using algebraic conditions. The principle states that allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation. The gene pool total genes and their alleles in a population remains constant. This is called genetic equilibrium. इसके कुछ फ्रिक्वेंसीज होते हैं, जो सम टोटल ऑफ ऑल द एलेलिक फ्रिक्वेंसीज इज़ वन होते हैं, जिसको हम
करते हैं जैसे कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला लर्न होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। Suppose in a population there are two alleles at one locus, A, capital A and small a, where capital A is dominant and allele and small a is recessive. Then the frequency of capital A is P, frequency of small a is Q, or frequency of population with capital A is P square. Frequency of population with capital A small a 2pq, and frequency of population with small a is q square. When frequency measured differs from expected values, the difference indicates the extent of evolutionary change. Disturbance in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg principle, that is change of frequency of allele in a population, would then be interpreted as a result in evolution. हार्डी विनबर्ग के कुछ 5 फैक्टर्स थे, जिस 5 फैक्टर्स थे इक्विलिब्रियम से। जैसे फर्स्ट था जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, सेकंड इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड इज म्यूटेशन एंड फोर्थ इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सेलेक्शन। Gene migration. When migration of a section of population to another place occurs, gene frequencies changes in the origin as well as in the new population. New genes alleles are added to the new population and these are lost from the old population. Gene flow. Gene migration occurs many times and result in gene flow. Then genetic drift. Change in gene frequency takes place by chance. Genetic drift is seen only in a small population. Genetic drift, also called sea-wall right effect or scattering of variables. Founder effect. Sometimes the change in allelic frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. The original drifted population becomes founder species and the effect is called founder effect. Now, natural selection. It changes genotypic frequency in 3 ways: stabilizing, directional and disruptive. Operation of natural selection in different traits. First is stabilizing selection. In this, more individuals acquire mean character value. Peak gets higher and narrower. Example: plant height, human birth weight. Directional selection. More individuals acquire value other than the mean character value. Peak shift in one direction. Example: DDT resistance in mosquitoes. Disruptive selection. More individuals acquire peripheral characters value at both ends of the disruptive curve. Two peaks form, that is sickle cell anemia. स्टेबलाइजिंग सेलेक्शन जो होते हैं उसको जो ग्राफ होता है वो ग्राफ का जो पीक होता है वो वेरी हाई होता है, जैसे प्लांट हाइट हो गया, ह्यूमन बर्थ वेट हो गया। और डायरेक्शन सेलेक्शन वो होते हैं जिसके पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन। एग्जांपल डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्किटोज। डिस्ट्रप्टिव सेलेक्शन टू पीक्स फॉर्म, दोनों इक्वल होते हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। नाउ द लास्ट एंड द लीस्ट टॉपिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ मैन। इसमें कुछ वेरी स्टेजेस होते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के। ह्यूमन एंसेस्टर ओरिजिन पीरियड होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट होता है ड्रायोपिथिकस। ये इसकी जो ओरिजिन पीरियड है वो 15 मिलियन ईयर्स अगो है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ड्रायोपिथिकस दिखते कैसे थे, जैसे कि मोर एप लाइक स्ट्रक्चर था, आर्म्स एंड लेग्स जो थे वो सेम लेंथ के थे और जो इनके ब्रेन थे वो बहुत लार्ज थे और ये खाने के लिए बहुत सॉफ्ट फ्रूट्स पत्तियाँ लीव्स का इस्तेमाल करते थे खाने के लिए। देन आता है रामापिथिकस। ये थे 15 मिलियन ईयर्स अगो। इनके भी जो ये भी बहुत मैन लाइक दिखते थे और ये वॉक्ड इरेक्ट, बहुत धीरे चलते थे, इरेक्ट चलते थे और टीथ लाइक मॉडर्न मैन, जो इनके टीथ थे वो बिल्कुल मॉडर्न मैन की तरह। रामापिथिकस जो थे मतलब वॉक्ड इरेक्ट मतलब वो थोड़ा झुक के चलते थे। देन आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। ये मैन लाइक प्राइमेट्स थे, टॉल थे, लंबे थे और ये सीधे चलते थे। ये फ्रूट्स खाते थे और उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो थी 400 to 600 cc और ये फॉसिल फाउंड इन तांजानिया एंड इथियोपिया।
Homo habilis, 2 million years ago, first human-like being brain capacity 650 to 800 cc, herbivores थे, fossil found in East Africa. Homo erectus, Java man, 1.5 million years ago, ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी. इनका खाना जो था वो मीट था. फॉसिल फाउंड इन जावा. होमो नीदरथैलेंस नीदरथाल मैन प्रिमिटिव मैन 1 lakh ईयर टू 40,000 ईयर्स अगो. ब्रेन साइज 1400 सीसी. यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट बॉडी एंड बॉडी बरीड आफ्टर डेथ. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बॉडी मतलब बॉडी बरीड का यूज़ करते थे. जो जानवर मर जाते थे उनके खाल को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे अपने कपड़े को बनाते थे. डेथ एनिमल्स के कपड़े को बनाते थे और खुद पहनते थे. और इनका जो फॉसिल फाउंड हुआ था वो ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में फाउंड हुआ था. देन लास्ट थे होमोसेपियन यानी कि मॉडर्न मैन जो है कि हम लोग 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो ये इन्होंने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर करना. ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड हुए. प्री हिस्ट्रिक केव आर्ट डेवलप हुआ. ये थे होमोसेपियन. एक पॉइंट होता है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जैसे कि द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट. पहला था ड्रायोपिथेकस जो एप लाइक थे. देन रामापिथिकस मैन लाइक. देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस. देन होमो हैबिलस ह्यूमन लाइक. होमो इरेक्टस जावा मैन. होमो नीदरथैलेंस नीदरथाल मैन प्रिमिटिव मैन. होमो सेपियंस क्रो मैग्नन मैन. होमो सेपियंस मॉडर्न मैन. वन पॉइंट इज देयर होमो सेपियन फॉसिल्स. ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या पता पूछते तो जो इनकी ब्रेन कैपेसिटी होती है तो बहुत हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी होती है. दैट इज 1650 cc. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट फॉलो कीजिएगा. और मैंने आपको सारे टॉपिक्स 30 मिनट्स के अंडर अराउंड कवर कराए हैं. जैसे सारे टॉपिक्स कवर करा दिए. एवोल्यूशन ऑफ मैन, सारे ह्यूमन एंसेस्टर ओरिजिन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सारे, ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सेलेक्शंस, ओरिजिन ऑफ लाइफ, डार्विन फिंचेस नेचुरल सेलेक्शन, एडाप्टिव रेडिएशन, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस सेशन शॉर्ट पॉडकास्ट सीरीज. इफ़ यू लाइक दिस, follow, comment and share. Thank you.